Hello students, how are you? I hope you all are enjoying your summer vacation. So from today I am starting to giving you short video on our DPP group. Every day you will get 10 to 20-minute video. So please watch it whenever you are free. Children, we have already discussed types of chemical reaction. बट ये यहाँ पर आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहेंगे so that you can revise again what is chemical reaction and why chemical reaction takes place. So please underline this part. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bond between atom to produce new substance. सो ये छोटा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि वाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जब भी आपको इस क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से आपको लिखना है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट नोट बनाते जाइए कि वाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देयर आर 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मोस्टली इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ से आपको लिखना था कि such chemical reaction in which a single product is formed when two or more reactant, ठीक है, so such reaction is known as combination. अब example you may be asked example about that. So first example is quicklime. That formula is calcium oxide plus water. It form calcium hydroxide select plus heat. So this is also called as a exothermic combination reaction. ठीक है। सो कई बार एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया जाता है कि ए केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट समटाइम ये भी आस्क व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म? तो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? व्हाइट इन कलर। ठीक है। सो दैट गिव द व्हाइट शाइनी सरफेस on the any surface plate. Okay, so this the other combination reaction just like burning of coal. ऐसे पूछ सकते हैं कि give one chemical reaction of burning of coal। तो coal का फार्मूला क्या होता है? C कार्बन प्लस O2 CO2। formation of water from hydrogen and oxygen। so hydrogen and oxygen combine together form water। so these are also called combination reaction and combustion reaction also. When oxygen is added to any chemical, so it is also known as combustion reaction। Okay, combustion reaction. Some other example of exothermic reaction. Mostly combination reactions are exothermic. Means these provide the heat, just like burning of natural gas methane। ठीक है। तो CH4 2O2 CO2। तो it is exothermic combustion as well as combination reaction। Respiration is also exothermic reaction। We all know respiration is important for our body that provide energy। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो क्या लिखेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अवर सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको रखना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो आप चाहो तो लिखें द ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन अवर सेल, ठीक है, that provide energy। The special name of this reaction is called respiration। very important reaction, respiration reaction। इसके अलावा कुछ रिएक्शन जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है, दिस इज आल्सो एक्जोथर्मिक। व्हेन वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज इट गिव्स हीट और एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको मोस्टली ये याद रखना है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन, कंबसन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल and formation of water and formation of calcium hydroxide from quicklime। so these are all combustion reaction and combination, but this is not a combustion reaction where water is using in place of oxygen। this is only combination reaction। okay, चलिए नेक्स्ट।
Second is decomposition reaction. So as we know, when a single reactant decompose into two or more product, such reaction are called decomposition reaction. So question may be asked, when we heat ferrous sulfate crystals, okay, so which gas is produced? So that is sulfur dioxide and sulfur trioxide. And how to identify? It is identified by the smell, that is characteristics burning smell of sulfur. सल्फर की जो बर्निंग स्मेल आती है, ब्लैकिश कलर आता है, उसके हिसाब से। एंड केमिकल रिएक्शन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो 2FeSO4, और इसमें आपको क्या लगाना है? हीट, बिकॉज हीट इज नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग फेरस सल्फेट इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको डिकम्पोजिशन के टाइप भी पढ़ने हैं भाई, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स, आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स आई विल राइट हियर देयर कोड वर्ड, उनकी कोड वर्ड लिखेंगे। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, TD। पहला वर्ड क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन। So this ferrous sulfate is converting ferric oxide, sulfur dioxide to sulfur trioxide। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। थर्मल सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकिंग टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे? SO2 SO3 गैस से। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कॉमनली लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज आल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ऑन हीटिंग इट इज अराउंड मोर देन 1000 डिग्री। इसके लिए कम से कम कितना हीट चाहिए? मोर देन 1000 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन फेरस सल्फेट 100 डिग्री या उससे नीचे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो आसानी से आप इसको डिकम्पोज कर सकते। बट कैल्शियम कार्बोनेट इज heavy stone, so that it break more than 1000 degree। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्विकलाइम, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्विकलाइम कहाँ यूज होता है? ये लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज, ठीक है। क्विकलाइम के फॉर्म में है। इट हैज मैनी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सबसे ज्यादा यूज इसका किसमें होता है? सीमेंट बनाने में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ना है, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, लीड नाइट्रेट। व्हेन वी हीट लीड नाइट्रेट ए ब्राउन फ्यूम्स जनरेट। तो ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं? NO2 गैस की। पंजेंट स्मेल आएगी प्लस ब्राउन फ्यूम, ठीक है। सो मोस्टली आपसे इक्वेशन लिखने के लिए पूछते हैं। सो जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड O2, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। NO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो लीड नाइट्रेट है। बैलेंस करेंगे तो 2PbNO3 और ट्वाइस 2PbO। बैलेंसिंग ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी है, तो थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ED, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप पूरा लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सबसे पहला एग्जांपल किया था डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जिससे यहाँ पर आपको रिएक्शन दी नहीं गई है, तो आप लिख सकते हो whenever water decompose with the help of electricity, E, ठीक है। यहाँ पर हम E कोड ले लेंगे। तो वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, किस में डिकम्पोज होता है? हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2 ठीक है। तो यहाँ पर 2 फॉर्म लिखना है। सो इसमें क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन डिपॉजिट एट विच इलेक्ट्रोड। देखिए, बैटरी से जो भी वायर जुड़े रहते हैं उनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो बैटरी के जो भी नेगेटिव एंड से जुड़ा रहेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो भी वायर या ग्रेफाइट जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एनोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं ग्रेफाइट से बने, ये भी ग्रेफाइट है, ये भी ग्रेफाइट है। तो एज यू नो, हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली। आपने देखा होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव -2 वैलेंसी होती है,
सो हाइड्रोजन डिपॉजिट एट कैथोड, तो कैथोड पर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मीन्स कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, डिपॉजिट नहीं होगा, गैस प्रोड्यूस करेगा, जो बबल्स दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन कहाँ पर होगा, यहाँ पर निगेटिव, मतलब एनोड पर, पॉजिटिव की ओर चलेगा। So after that you will see that one test tube have more space than another, so that you can see when water decompose into hydrogen and oxygen, 2 mole hydrogen are producing and 1 mole oxygen. So hydrogen quantity is double, then तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आएगा, डबल क्वांटिटी बनेगा, और ऑक्सीजन कितना बनेगा, 1 क्वांटिटी, so that वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा पूछा जा सकता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज, इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम Na प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, Cn प्लस क्लोरीन गैस। तो आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2Na। तो अब आपसे पूछा जाएगा सोडियम विल डिपॉजिट एट विच इलेक्ट्रोड, तो सोडियम पॉजिटिव होता है तो ये तो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, क्लोरीन इज नेगेटिव और ये कहाँ पर हो जाएगी, एनोड पर, तो ये एनोड पर चली जाएगी। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन, आपको जो थर्ड पॉइंट है वो आपको पढ़ाना है, इसको बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पीडी, शॉर्ट फॉर्म में क्या याद करेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोलाइसिस, so when any chemical break down in presence of sunlight it is called photolysis। तो यहाँ पर दो केमिकल आपको अच्छे से याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। when silver chloride or silver bromide put in the sunlight, यहाँ पे देखो sunlight, immediately they break down silver and chlorine। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट होता है, whenever you will take silver chloride white, immediately ये ग्रे हो जाएगा, कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है ड्यू टू फोटोलाइसिस। देखिए यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने से ग्रे हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड ये भी आपका थोड़ा रेडिश होता है, व्हेन इट पुट इन द सनलाइट इट बिकम ग्रे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन, जनरली दिस रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले के टाइम में जो नेगेटिव बनते थे उनके ऊपर ये केमिकल लगाया जाता था, और जैसे ही सनलाइट गिरती थी ये नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता था। सो दिस इज द सिंपल फोटोलाइटिक रिएक्शन। आपसे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन इन सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ विच, ठीक है, कंडीशन, तो आपको सनलाइट यूज करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। हमने आज आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा दिया है, डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप पढ़ा दिए हैं, और आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज इन वाइट वॉश, तो ऑलरेडी हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो वाइट वॉश सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, क्विकलाइम, ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स, तो भैया नेम हमको पता है क्विकलाइम, CaO, आपको क्या लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम नहीं लिखना है, ठीक है। क्विकलाइम भी लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलेगा, नो प्रॉब्लम, बट आप नेम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो केमिकल नेम इज क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब राइट द रिएक्शन नेम विथ वाटर, अब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन पूछ रहा है तो आपको पता है ऑलरेडी, इट विल गिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्विकलाइम CaO प्लस H2O वाटर। अब H2O आप जैसे ही मिलाएंगे इट कंबाइन टुगेदर तो ये बना लेता है Ca ब्रैकेट OH, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से राइट कर लेना, तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इज डबल ऑफ द अनदर।
आपके पास दो टेस्ट ट्यूब आपने देखा था वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही थी और दूसरे में तो कौन सी गैस थी? तो पहला आपको लिखना था हाइड्रोजन गैस, क्या लिखना था? और रीजन लिखना है हाइड्रोजन, बिकॉज तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज 2 मोल, हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग इन 2 मोल, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इन 1 मोल, सो दैट हाइड्रोजन क्वांटिटी इज डबल। ओके, सो यहाँ तक आपको आज पढ़ा दिया, थोड़ा आप जब भी फ्री हो वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।